Thank you. करिए, हो जाएगा रिकॉर्ड. So students, as I told you yesterday also, we are going to start with the geography part, chapter 2, inside our earth. In 6th class, we studied about major domains of the earth, major landforms on the earth. It means जो earth है, it keeps on changing not from the outside but from the inside also. So in this, we are going to study first the interior of the earth. As I already told you yesterday, so we are going to cover this chapter under 3 broad topics: interior of the earth, rocks, types of rocks, uses of rocks, and rock cycle. Then the last topic, minerals. So today we are going to start with the interior of the earth. As I already told you that earth is a dynamic planet and it constantly undergoing changes in from inside and from the outside. So what is the earth made up of? अब जो अर्थ का जो एक्सटीरियर है वहां पे हमें माउंटेन्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, प्लेट्यूज ये सब चीजें देखने को मिलती हैं. बट व्हाट अबाउट द इंटीरियर? That is a curiosity to know about the interior of the earth. So we are going to start with the first topic, interior of the earth. So if you are having your books with you, open your books at page number 7. So first topic that we are going to do. So interior of the earth जो interior है, that just like an onion. I told you yesterday also कि you can compare it with the onion, you can compare it with the apple or with the boiled egg. अगर आप अनियन को राउंड में काटोगे, यू कट डाउन इन दैट, सो द अर्थ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स. अर्थ की भी लेयर्स हैं लाइक अनियन, लाइक दिस. जो अर्थ है इसके भी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं. सो दीज आर द लेयर्स: क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर, मेंटल, कोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड outer core. So these layers that we are going to study. One by one we are going to study these layers. So number 1, the first layer is the crust. The crust is the uppermost layer. It is the thinnest of all layers. जो अर्थ की लेयर में जो सबसे पहली लेयर है, that is crust, ये सबसे thinnest है. And इस अर्थ की crust को we can divide it into 2 parts. One is continental masses, अदर इज ऑन द ओशियन फ्लोर. अगर आपने देखा होगा अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं, अर्थ पे ओशियंस भी हैं. अब जो लैंड मास है वो तो हमें दिखाई देता है, तो व्हाट अबाउट द ओशियंस? ओशियंस में ऐसा कैसे है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू लर्न? इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. जो हमें लैंड मासेस, जो हमें लैंड हमारे सरफेस पे हमें दिखाई देती है, पर जो ओशियंस हैं उनके नीचे भी ओशियन फ्लोर है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्रस्ट. सो जो क्रस्ट है इट इज ऑफ 2 टाइप. वन इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अदर इज द ओशियनिक क्रस्ट. जो ओशियंस के नीचे जो हमारा सी फ्लोर है, दैट इज द ओशियनिक क्रस्ट. अब इनकी कितनी डेप्थ है? जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं दैट इज अबाउट 3500 किलोमीटर. जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं दैट इज अबाउट 35 किलोमीटर. एंड ओशियन फ्लोर, जो ओशियनिक क्रस्ट है, दैट इज ओनली 5 किलोमीटर. So it varies. You can just read from your book also. It is already mentioned. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor. The main thing is to learn कि जो crust है that is not only that we are seeing, but it is on the continental masses also, but in the oceanic crust also. Ocean floors are also covered under this. Okay. Then the next is जो ये continental crust है और oceanic crust है, these are made up of certain minerals. ये कुछ minerals से बनी हुई हैं. Continental crust, it is made up of minerals silica and alumina. Now please note it down and underline in your books also that continental crust consists of minerals silica and alumina. अब जो सिलिका का है, if we talk about silica, सिलिका का Si और एलुमिना का Al, इनको जब कंबाइन किया जाता है, द नेम कंबाइन एज Cr. ठीक है. सो कौन कौन से मिनरल से बनी हुई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? सिलिका एंड एलुमिना. अगर आप इनके फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा Si and Al, दैट इज Cr.
नाउ द ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियन फ्लोर है वो कौन से मिनरल से बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब इसमें से भी हम फर्स्ट टू अल्फाबेट्स SI, फर्स्ट टू लेटर्स, यहाँ पे भी फर्स्ट टू लेटर्स MA, तो ये कंबाइंड नेम क्या बन गया कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट का? दैट इज सीमा। So it's also mentioned in your book. You can underline. ठीक है? So from the second paragraph, you can read the main mineral constituents of the continental mass. जो continental crust है, उसमें कौन-कौन से minerals हमें से बनी हुई है? Silica and alumina. It is thus called Sial. And oceanic crust is mainly consist of silica and magnesium. Is therefore called Sima. तो आपको अब पता लग गया होगा कि ये सियाल और सीमा कैसे बना है. We have taken first two letters of each. सिलिका का SI, एल्यूमिना का AL, सियाल, सिलिका का SI, मैग्नीशियम का MA, सीमा. ठीक है? So this is about the first layer, that is crust. I am repeating again. The first layer of the earth is crust. It is the uppermost, सबसे ऊपर वाली लेयर है. It is the thinnest, सबसे पतली लेयर है ये. इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर. ओशियनिक क्रस्ट की डेप्थ कितनी है? 5 किलोमीटर. So these crusts are made up of minerals. Continental crust is made up of minerals silica and alumina. Silica का Si, alumina का Al, Sial. And oceanic crust is made up of silica and magnesium. Silica का Si, magnesium का Ma, that is Sima. So आपको क्वेश्चन आ सकता है, name the minerals that constitute the oceanic crust or the continental crust. Now, the next we are going to move the second, the mantle. जो second layer आती है अर्थ की, that is the mantle. It is the middle layer of the earth, and it extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust. अब हमने crust की हमने कितनी डेप्थ पढ़ी थी? कॉन्टिनेंटल में 35 किलोमीटर, ओशियानिक में 5 किलोमीटर. बट जो मेंटल है दैट इज डीप इनसाइड, वो काफी ज्यादा डेप्थ है. सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द मेंटल? दैट इज 2900 किलोमीटर. और ये पूरे अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका 84% पार्ट बनाता है. इट फॉर्म्स द 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम. क्रस्ट का होता है हार्डली 1%. क्रस्ट इज हार्डली 1% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम. ठीक है? नाउ अब जिस तरह हमने पढ़ा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन मिनरल्स. तो जो ये मेंटल है दैट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड आयरन. मेंटल इज आल्सो मेड अप ऑफ सर्टेन मिनरल्स. ये कौन-कौन से मिनरल्स हैं? मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड आयरन. दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. You can write down the names of minerals on your book. Okay, so second layer of the earth is mantle. It is the middle layer. Its depth is about 2900 kilometer. It forms the 84% of the earth's volume, and it consists of minerals magnesium, silicon and iron. This is the second layer. Now we are going to learn the third layer, that is core, center layer. आपको पता है अर्थ के सेंटर में पहुंचना इट्स हार्डली इम्पॉसिबल. नो वन कैन रीच एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन एनीबडी टेल मी? कि जो अर्थ का सेंटर है, जो अर्थ के इंटीरियर में हम नहीं पहुंच सकते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जस्ट रेज हैंड, देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक इफ यू नो द आंसर. शिप्रा त्रिपाठी. शिप्रा, Shipra, unmute कीजिए and then you can give the answer. Yes, Shipra, give me the reason. Ma'am, because ma'am, the core is very hot. Very good. So we cannot reach the core. Okay. It is very hot. ठीक है. So the main thing you can get it from your book also. आपकी book में do you know है on the same page. To reach the center of the earth,
that is hardly impossible. You will have to dig a hole of 6,000 kilometer deep on the ocean floor, and it is hardly impossible to reach there because of temperature. जो सेंटर का टेम्परेचर है दैट इज वेरी मच हाई, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5,000 डिग्री सेल्सियस टू 6,000 डिग्री सेल्सियस तक है उसका टेम्परेचर। और आप एज्यूम कर सकते हो जो सन का सरफेस टेम्परेचर है, जो सन का इंटीरियर नहीं, जो सन के बाहर का टेम्परेचर है दैट इज नियर अबाउट 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड। So due to high temperature, due to heat, it is clearly impossible to reach at the center of the earth. So the third layer है that is core. It is the innermost layer. Its radius is about 3,500 kilometer. You have studied radius, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है what is radius. Okay, its radius is about 3,500 kilometer. जिसका हमने मेंटल में पढ़ा था कि मेंटल forms the 84% of the earth's volume, core forms the 15% of the earth's volume. अर्थ के वॉल्यूम का 15% कोर बनाता है। और कोर किसका बना हुआ है? कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। निकल एंड आयरन, आयरन में भी जो है जो इसका आयरन ओर है दैट इज फेरस, दैट इज फेरस। सो इसमें भी इन्होंने एक इनके लिए एक ब्रीफ उन्होंने लैंग्वेज यूज की है, जैसे हमने सियाल और सीमा में किया था। निकल का Ni और फेरस का Fe, दैट इज नाइफ। कौन से मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोर में? दैट आर निकल एंड आयरन। आयरन का कौन सा ओर है? दैट इज फेरस। सो Ni फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ निकल एंड Fe फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ फेरस को कंबाइन करके क्या बन जाता है? नाइफ। इट्स ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक, यू कैन अंडरलाइन पेज नंबर 8। इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड कॉल्ड नाइफ। अब आपको पता लगा होगा कि नाइफ कैसे बना, ठीक है। द सेम वे वी हैव डन विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट इज सियाल एंड ओशियानिक क्रस्ट दैट इज सीमा। नाउ वन थिंग मोर दैट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट जो ये कोर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो आउटर कोर है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। आपने सिर्फ इतना ही लर्न करना है, जो इसकी डिटेल्स हैं दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन योर हायर क्लासेस। कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इनर कोर है वो सॉलिड है, जो आउटर कोर है दैट इज लिक्विड। ऐसा किस लिए होता है? ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, temperature and pressure. So these are the three layers that you have to do, ठीक है। So in these three layers if you have any doubt you can raise hand, then I can clear your doubts. Okay, you can raise hands. So what we have done today, we have done the interior of the earth. Just to make you revise, there are three layers of the earth: crust, mantle and core. And you can see in your books also there is diagram of interior of the earth. So interior of the earth I have also made the same, draw the same. So the first layer is crust. जो सबसे ऊपर जो thickest layer है that is crust, और उसके बीच जो हम जाते हैं वो भी सभी पार्ट है लिथोस्फीयर, crust and lithosphere। जो सॉलिड पोर्शन, क्रस्ट का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। देन द सेकंड लेयर इज मेंटल, सेकंड लेयर इज मेंटल एंड द थर्ड वन इज कोर। कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द इनर कोर, अदर इज द आउटर कोर। नाउ जो क्रस्ट है दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉन्टिनेंटल, continental crust, other is oceanic crust. continental crust कौन से मिनरल से बनी हुई है? सिलिका एंड एल्यूमिना, कंबाइंड नेम सियाल। ओशियानिक crust किसकी बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, कंबाइंड नेम सीमा। मेंटल, जो मेंटल है इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर। Fine. And जो inner core है outer core, and it is hardly impossible to reach at the center of the earth because of
the high temperature. So these 3 layers we have done today. Now it's your turn to just tell me. Yesterday I told you that I have given you the example of boiled egg. Yesterday I have given you the example of boiled egg and apple. Now it's your turn to raise hand and tell me the layers on them. आप अब मुझे बताओगे कौन सी लेयर कहाँ पे फिट होती है, ठीक है? Which is crust, which is mantle, and which layer is core. Fine? Yes, ma'am. Ma'am, the white shell on the egg is crust. The white portion that when we break the shell, the white portion is the mantle, and the yellow is the core. अब आपने देखा होगा कि जो वो व्हाइट वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है जब हम उसका क्रस्ट का जो ऊपर का जो हमसे पील करते हैं, जो व्हाइट पोर्शन इज वेरी मच ना, ठीक है? तो Yes, इट मींस जो मेंटल है उसका देखो जो क्रस्ट है वो बिल्कुल थिनेस्ट है, ठीक है? और उसके बाद जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो बहुत थिक है, ठीक है? और उसके बाद येलो जो योग है दैट इज कोर. वेरी गुड मान्या. सो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द एप्पल लेयर्स इन एप्पल? अदिति दुबे. Aditi? Okay, I think she is not able to. Parleen? Parleen? Parleen, if you can unmute yourself. Trisha, if you can unmute yourself. Manveer Singh, but anyone who can unmute, they can give me the example. Ma'am, may I? हाँ बानी बोलिए बेटा, बोलिए बेटा. मैम जो उसका बाहर वाला रेड होगा जो हम उसको फिल कर देते हैं मैम, Fill वो करते होगा हैं. हमारा क्रस्ट. Yes. यस मैम, वो क्रस्ट. जो मैम उसके अंदर का येलो पोर्शन और व्हाइट पोर्शन होता है वो मैम मेंटल, और जो सीड वाला एरिया होता है उसे हम कोर कहेंगे. हाँ, तो अगर आपने नोटिस किया होगा जो सीड होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ठीक है? Yes, और आपने ma'am. जो पील किया है वो बहुत थिन लेयर होती है, ठीक है? तो जो हमने अभी क्या पढ़ा है, जो क्रस्ट है दैट इज द थिनेस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, थिनेस्ट है. तो अभी हमने दोनों, देखो दोनों स्टूडेंट्स ने बताया है कि जब हम बॉइल्ड एग से स्किन वो ऊपर वाला पोर्शन शेल को रिमूव करते हैं या हम एप्पल को पील करते हैं वो बहुत थिन लेयर होती है. देन द सेकंड जो व्हाइट पोर्शन है दैट इज द मेंटल. एप्पल में जहां पे सेंटर में सीड्स हैं दैट कैन एक्ट एज अ कोर, और जो आपका बॉइल्ड एग है उसमें जो येलो पोर्शन है yolk दैट इज एक्टेड एज अ कोर देयर. वेरी गुड.